اور ہم خوشیوں میں جی، اور کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی پرتیدوندوی حاوی نہ ہو جائے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے، کیونکہ دین ہمارے ذوق میں ہے، اور ہم اپنے خالق کے قول کی تلاوت کرتے ہیں۔ تعظیم کے لیے اسی طرح درود۔ اس کے عرش کا وزن، اس کے شبدوں کی سیاہی۔ اے اللہ میرے رب، مجھے معاف کر، رحم کر، توبہ قبول کر، رحم فرما، توبہ قبول۔ رب معافی، رحم، رب معاف کر، رحم، رب توبہ قبول کر۔ اے رب معاف کر، رحم کر، توبہ قبول کر۔ رب क्षमा कृपा कर، توبہ۔ رب مجھے معاف، رحم کر، توبہ۔ رب بخش، توبہ۔ رب معاف کر، رحم کر، توبہ کر۔ رب معاف کر، رحم، توبہ کر۔ رب مجھے معاف کر، دیا کر۔ رب بخش، رحم کر، توبہ۔ رب مجھے بخش، رحم، رب بخش، رب معاف کر، رحم کر، توبہ قبول کر۔ رب بخش، رحم کر، توبہ۔ رب معاف، رحم کر، میری توبہ کر۔ رب معافی، رحم، توبہ۔ رب مجھے بخش، رحم کر، توبہ قبول۔ क्षमा، دیا، توبہ سویکار کر۔ پربھو مجھے क्षमा، دیا، تو رب مجھے معاف، رحم، توبہ قبول۔ رب क्षमा دیا دے، توبہ۔ رب مجھے معاف، رحم، توبہ۔ رب مجھے معاف، رحم، توبہ۔ رب معافی، رحمت دے، توبہ۔ معافی، رحمت، توبہ، رحم کر، میری توبہ قبول کر۔ ربا مجھے معاف، رب مجھ پر رحم، بخش، معاف کر، رحم کر، توبہ قبول۔ رب معافی، دیا، پربھو بخش، دیا کر، توبہ۔ رب مجھے معاف، رحم کر، توبہ۔ معاف کر، رحم کر، توبہ قبول۔ رب معافی، رحم، توبہ سویکار۔ رب معاف کر، رحم کر، توبہ قبول۔ مجھ پر دیا کر، توبہ قبول کر۔ رب بخش، رحم، توبہ۔ رب رحم و بخشش کر، توبہ۔ رب مجھے بخش، رحم کر، توبہ قبول۔ رحم کر، توبہ قبول کر۔ رب معافی، رحمت دے، توبہ۔ رب معاف کر، توبہ قبول۔ رب معافی، رحمت، توبہ۔ رب بخش، رحم کر، توبہ قبول۔ رب معاف، رحم کر، توبہ قبول۔ رب क्षमा دیا، توبہ قبول۔ رب مجھے بخش، رحم، توبہ۔ رب مجھے بخش، رحم، رب بخش، رحم کر، توبہ قبول۔ رب توبہ قبول۔ مجھ پر رحم، توبہ قبول۔ رب معاف کر، رب بخش، رحم کر، توبہ۔ رب معافی، رحمت، رب بخش، رحمت، توبہ۔ رب معاف، رحم دے، توبہ کر۔ رب معاف کر، رحم کر، توبہ قبول کر۔ رب مجھے معاف کر۔ رب معاف، رحم، توبہ۔ رب بخش، رحم کر، توبہ کر۔ رب معافی، رحمت، توبہ۔ رب معاف، دیا کر، توبہ سویک۔ رب بخش، رحم، توبہ۔ رب معافی، رحمت، توبہ۔ رب معاف کر، رحم، توبہ کو۔ رب क्षमा، رحمت، توبہ۔ رب معافی، رحمت۔ رب معاف کر، رحم کر، توبہ کو۔ رب مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر۔ اے اللہ مصیبت کو دور کرنے والے، مصیبت کے آسمان سے اترنے سے پہلے اسے ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ یا اللہ، اے اللہ مصیبت کو دور کرنے والے، مصیبت کے آسمان سے اترنے سے پہلے اسے ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے اللہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، آسمان سے مصیبت اترنے سے پہلے ہمیں اس سے بچا لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔
तेरी मोहब्बत से तेरी पनाह में सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ही की ओर से हमें सबसे बेहतर मुकाम पर स्थापित कर दे, हमें तमकीन के सबसे ऊंचे दर्जे तक उठा दे। शुक्र और तेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक जिसने हमारे लिए इरादा किया। ए अल्लाह उन पर, उनके परिवार और साथियों पर रहमत, सलाम और बरकत नाजिल फरमा। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन दुरूद सलाम मोहम्मद उनके आल और इमाम सैयदना अब्दुल वहाब अश-शारानी की किताब कश्फ अल गुम्मा में मुत्तसिल सनद के साथ यहाँ तक कि उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, न फर है न अतीरा है और फर पहली पैदावार थी जिसे वे अपने झूठे देवताओं के लिए ज़बह करते थे और अतीरा वे रजब में ज़बह करते थे। फिर नबी ने छूट दी और कहा, अल्लाह के लिए ज़बह करो, नियत अल्लाह के लिए रखो, इसी भी महीने खिलाओ। तो मामला इसी तरह तय हो गया और एक रिवायत में है कि हर घर वालों पर रजब में एक भेड़ ज़बह करना है। नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों के लिए कुर्बानी से हमेशा रोकते थे। ज़ुहरी से पूछा गया, बोले, जाहिलियत में जब कोई घर, कुआं या ऐसी चीज़ खरीदता था तो वे ही पक्षियों के नाम कुर्बानी देते ताकि वहां बसे जिन्नों से हानि और हस्तक्षेप टल जाए। अनस कहते थे, जब रसूलुल्लाह के बेटे इब्राहिम का जन्म हुआ तो रसूलुल्लाह उनसे बहुत खुश हुए और उनकी दाई सलमा थी जो अबू राफ़े की पत्नी थी। जब अबू राफ़े ने रसूलुल्लाह को इब्राहिम के जन्म की खबर दी, उन्होंने उसे एक गुलाम दिया और उन्होंने उनके जन्म के 7वें दिन उनके बाल मुंडवाए और उनके बालों को चांदी के वज़न के बराबर दान करने के बाद दफना दिया और उनका नाम रखा। फिर उसे मदीना की उम्मे सैफ को सौंपा ताकि वह दूध पिलाए, क्योंकि मारिया रसूलुल्लाह की खिदमत में व्यस्त थी और वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सैफ के पास जाते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेते, उन्हें सूंघते और चूमते, फिर उसे उन्हें वापस दे देते। अबू हुरैरा ने कहा, रसूलुल्लाह ने हसन व हुसैन की तरफ से हर एक के ही लिए 2 मेढ़े ज़बह किए और उनसे एक रिवायत में है कि एक मेंढा, और उन्होंने फातिमा से कहा, इन दोनों के बाल मुंडवाओ और उनके वज़न के बराबर चांदी सदका करो। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और उनमें से हर एक के बालों का वज़न 1 दिरहम या 1 दिरहम का कुछ हिस्सा था। उन्होंने कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के कान में अजान दी जब फातिमा ने उन्हें जन्म दिया और उनके कान में सूरह इखलास पढ़ी। और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म हिजरत के 3रे साल रमज़ान के बीच में हुआ था। फिर उनके बाद हिजरत के 4थे साल शाबान में हुसैन का जन्म हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है। ए अल्लाह, अपनी श्रेष्ठ सलामती भेज प्रिय मखलूक हमारे सरदार मोहम्मद पर, उनके अहले बैत और सहाबा पर, आपकी जानकारी और स्याही जितनी जब भी जिक्र हो और जब गाफिल भूले। ए अल्लाह, सर्वोत्तम दुरूद भेज सरदार मोहम्मद आल और सहाबा पर सलाम। आपके ज्ञान की गिनती आपके शब्दों की स्याही जितना जब याद करने वाले आपको और उन्हें याद करें गाफिल भूलें। ए अल्लाह, सर्वोत्तम दुरूद भेज मोहम्मद उनके परिवार साथियों पर सलाम भी आपके ज्ञान की संख्या और आपके शब्दों की स्याही के बराबर जब याद करने वाले आपको और उसे याद करें और गाफिल भूले। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमें रोशन शरीयत दी और अफजल मखलूक मोहम्मद की ज़ुबान से उसे बयान किया। उन पर सलाम और रहमत, उनके अहले बैत पर जिन्हें पाकी मिली, सहाबा पर जिन्हें दर्जा मिला और उन पर जो खुले छुपे नेक पैरवी करें, और उनके पिताओं और भाइयों पर जो नबियों और रसूलों में से हैं, जो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर रब्बुल आलमीन के करीब लोगों के सरदार हैं, और उनके परिवार
साथियों और अनुयायियों पर और करीबी फरिश्तों पर और अल्लाह के सभी नेक बंदों पर और हम पर भी उनके साथ और उन्हीं में। बेशक वह उदारों में सबसे उदार और रहम करने वालों में सबसे रहम करने वाला है। और शेख अकीका और उससे जुड़ी बातों का जिक्र जारी रखते हैं। और उन्होंने रजब के महीने में ज़बह करने के बारे में जो आया है उसका जिक्र किया, और यह कि यह इस बात से जुड़ा और बंधा हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर ज़बह किया जाए और उसे सदका की जगह पर रखा जाए। और जो कुछ लोग करते हैं कि कुछ ज़बह करते हैं और कहते हैं कि वे इसे जिन्नों को देते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं और गरीबों को नहीं खिलाते, तो यह मना है। शरीयत के हिसाब से यह बातिल है और माल की बर्बादी है और गोश्त को गलत जगह ज़ाया करना है। लेकिन जो ज़बह किया जाता है उसे खाया जाता है और ज़रूरतमंदों और गरीबों को सदका किया जाता है। नबी ने जिन्नों के लिए कुर्बानी से रोका। पूछा गया तो कहा, जाहिलियत में जब कोई घर हुआ या कुछ ऐसा खरीदता तो उसकी नज़र के लिए ज़मीन पर जानवर ज़बह करते, कहते निवासी जिन्न के नुकसान से बचने को। यह इस्लाम की शरीयत में मना की गई बातों में है। इसलिए ऊंट, गाय और भेड़ में से किसी का भी ज़बह करना कदापि जायज़ नहीं है, सिवाय खिलाने के, लोगों के भोजन के लिए, जिसमें ज़बह करने वाले का भोजन, उसके परिवार का भोजन, उसके रिश्तेदारों का भोजन, रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखना, ज़दका और मेहमान का सम्मान करना और शरीयत में बताए गए अन्य सही मकासद शामिल हैं। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते थे कि जब अल्लाह के रसूल के पुत्र इब्राहिम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बहुत प्रसन्न हुए। कासिम का निधन हो गया जब वह छोटा था और उसकी कुनियत अबू अल कासिम थी, और अब्दुल्ला अत-तैयब अत-ताहिर का निधन हो गया जब वह छोटा था, और 4 बेटियां बची रही, हमारी सैयदा ज़ैनब, हमारी सैयदा रुकैया, हमारी सैयदा उम्मी कुलसूम, हमारी सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा। फिर उसके बाद उनके जीवन काल में ज़ैनब, रुकैया और उम्मी कुलसूम का निधन हो गया और फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बची रही। अल्लाह उनसे और उन सब से राज़ी हो। तो उनका निधन उनके 6 महीने बाद हुआ और वह अपनी उम्र के 28वें और 29वें साल के बीच थी। अल्लाह उनसे राज़ी हो। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की दाई अबू राफे की पत्नी सलमा थी। जब अबू राफे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके जन्म की खुशखबरी दी, वही खबर उन्होंने 2 बार सुनाई। इब्राहिम के जन्म पर उन्होंने उसे एक गुलाम भेंट किया उसकी खुशखबरी के लिए, और इसमें यह है कि जिसे किसी पसंदीदा चीज़ की खुशखबरी दी जाए उसे खुशखबरी देने वाले को इनाम देना चाहिए और उसे कुछ उपहार देना चाहिए। और अबू राफे ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी दी कि उनकी दासी मारिया अल किब्तिया से उनके लिए बेटा इब्राहिम पैदा हुआ है, तो उन्होंने उसे एक गुलाम भेंट किया और उसे उसी का मालिक बना दिया। फिर उसके जन्म के 7वें दिन उसके बाल मुंडवाए। और हमने पहले बताया है कि यह अकीका है, जो नवजात के उन बालों को हटाना है जिनके साथ वह पैदा हुआ है, तो यह उसका अकीका है। और उस दिन भी ज़बह किया जाता है और उसके बालों को उसके वजन के बराबर चांदी का सदका करने के बाद दफना दिया। इंसान से बचपन या बुढ़ापे में निकलने वाले बाल, नाखून व समान चीज़ें दफनाना ही चाहिए, और अगर वह उसे किसी अच्छी जगह दफनाता है जहां नेक लोगों को दफनाया जाता है और इसी तरह, तो यह बेहतर है। तो वह अपने शरीर के अंगों से जो निकलता है उसे दफनाता है, क्योंकि यह सम्मानजनक है। और हमने आदम की संतान को सम्मानित किया है, तो उसे कूड़ेदान या नाली में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जो बाल
नाखून और इसी तरह की चीजें इंसान से निकलती है, उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें किसी अच्छी जगह पर दफना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटे इब्राहिम के बालों को उसके वजन के बराबर चांदी का सदका करने के बाद दफना दिया और वो उसका नाम इब्राहिम रखा। और उसके बाद हमारे सरदार जिब्रील उनके पास आए और उन्हें कुनियत दी और कहा, ए अबू इब्राहिम। फिर उसे मदीना में दाई के लिए सैफ को सौंप दिया, क्योंकि मारिया रसूल अल्लाह की सेवा में व्यस्त थी, तो वह सैफ के पास जाते थे। और उसका यह पति भी एक चर्मकार था, तो वह आते थे और उनके पास मश्क की गंध और चमड़ा कमाने का असर होता था, तो वह यह सब बर्दाश्त करते थे और कभी कभी धुएं में बैठ जाते थे, जब तक कि वे उनके लिए लड़के को बाहर नहीं निकाल देते। तो वे इब्राहिम को उनके हाथ में देते, वह उसे सूंघते और चूमते, और चूमना होंठों से होता है और सूंघना नाक से, फिर वह उसे वापस दे देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज उस बच्चे का हाल पूछने आते, घर वाले उसे पेश करते, वे भी उसे चूमते, सूंघते, गोद में लेते, उसके लिए दुआ करते, फिर उसे उन्हें लौटा कर वापस चले जाते। कितनी सुंदर थी उनकी तरबियत। अबू हुरैरा ने कहा, रसूलुल्लाह ने हसन हुसैन के लिए प्रत्येक 2 मेंढे ज़बह किए और एक रिवायत में हर एक के लिए एक मेंढा है। तो अकीका में वही जायज़ है जो कुर्बानी में जायज़ है। और उन्होंने फातिमा से कहा, उनके बाल मुंडवाओ और उसके वजन के बराबर वरक यानी चांदी सदका करो। और अगर वह अमीर है जिसके पास क्षमता और सामर्थ्य है, तो वह उसे सोने से तौले, वरना चांदी से, और उस पाल के वजन के बराबर सदका कर दिया जाए। तो अकीका में वही जायज़ है जो कुर्बानी में जायज़ है, चाहे वह ऊँट हो, गाय हो या भेड़, और यह ज्ञात और सर्वसम्मत है। और मालिकियों के पास एक राय है जो ज्यादा सही के मुकाबले में है कि अकीका सिर्फ भेड़ बकरी से होता है, अकीका गाय, ऊँटनी या ऊँट से नहीं होता। लेकिन यह राय उनके यहाँ ज्यादा सही के मुकाबले में है। उनके नज़दीक ज्यादा सही वही है जो चारों इमामों का मत है। वो अकीका में ऊँट, गाय या भेड़ की वह कुर्बानी जायज़ है जो कुर्बानी में जायज़ है। और शाफी भी कहते हैं कि अकीका में ऊँट का 7वां हिस्सा और गाय का 7वां हिस्सा जायज़ है, जैसा कि कुर्बानी में जायज़ है। मालिकी और हनबली कहते हैं कि नहीं, अकीका में केवल एक पूरा ऊँट, एक पूरी गाय या एक पूरी भेड़ ही जायज़ है। ऊँट या गाय का 7वां हिस्सा उनके अनुसार अकीका नहीं होता। अगर कोई ज़बह करना चाहता है तो उसे एक पूरा अकीका ज़बह करना चाहिए, चाहे वह ऊँट हो, गाय हो या भेड़। इसी तरह मालिकियों और हनाबिला के अनुसार गाय का 7वां हिस्सा या ऊँट का 7वां हिस्सा काफ़ी नहीं है अकीका के लिए। और शाफियों और हनाबिला ने यह भी कहा कि लड़के के लिए 2 भेड़ और लड़की के लिए 1 भेड़ का अकीका करना सुन्नत है। तो लड़के के लिए 1 भेड़ का अकीका करना जायज़ है, जैसा कि रिवायत है कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन के लिए एक एक मेंढा, यानी हर एक के लिए 1 मेंढा का अकीका किया था। हनफियों और मालिकियों ने कहा कि अकीका 1 भेड़ है, चाहे नवजात लड़का हो या लड़की, चाहे नवजात लड़का हो या लड़की, 1 भेड़, 1 भेड़। अकीका 1 भेड़ है, चाहे नवजात लड़का हो या लड़की। तो हनफियों और मालिकियों के अनुसार अकीका 1 ही भेड़ है। और अगर बच्चे 1 से ज़्यादा हों तो अकीका भी 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर पैदा हुए जुड़वा जुड़वा पैदा हुए 2 अकीके होंगे, उनके लिए 2 अकीके किए जाएंगे।
तो दो के लिए एक भेड़ काफी नहीं है। अगर जुड़वा बच्चे पैदा हों तो दो भेड़ें जरूरी हैं ताकि उन दोनों के लिए काफी हो जाए। और शाफियों के अनुसार गाय में 2/7 हिस्से या ऊंट में 2/7 हिस्से। और यह मुस्तहब है कि वह अकीका के लिए ज़बह करते समय वही कहे जो कुर्बानी के समय कहता है, जैसे तस्मिया, बिस्मिल्लाह कहना और ए अल्लाह तेरे लिए और तेरी ओर, और यह फलां का अकीका है। और यह आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का अकीका करते समय उनसे कहा, कहो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तेरे लिए और तेरी ओर, यह फलां का अकीका है। जैसे सिर मुंडवाना अकीका के दिन यह भी सुन्नत है कि 7वें दिन नवजात का सिर मुंडवाया जाए और उसके वजन के बराबर चांदी का सदका किया जाता है, चाहे नवजात लड़का हो या लड़की। मालिकियों और शाफियों ने कहा कि सिर मुंडवाने में कोई फर्क नहीं है। रिवायत है, फातिमा रजी ने हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम के बाल तोले, उसके वजन जितनी चांदी सदका की। जैसा इमाम मालिक ने मुवत्ता में रिवायत की कि उन्होंने हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के बालों का वजन किया और उसके वजन के बराबर चांदी का सदका किया। चाहे हनाबिला ने कहा कि नवजात लड़की के बाल नहीं मुंडवाए जाते। बाल मुंडवाना केवल बेटे के लिए होता है। हनफियों ने कहा कि नवजात के बाल मुंडवाना, चाहे वह लड़का हो या लड़की, 7वें दिन जायज है। वे इसे सुन्नत या मुस्तहब नहीं मानते, बल्कि इसे जायज कामों में से एक मानते हैं। तो अकीका कौन पेश करता है? असल बात यह है कि जिस पर खर्च की जिम्मेदारी है वही अकीका का जिम्मेदार है, तो वह उसे अपने पैसे से अदा करता है, अपने पैसे से खरीदता है और उससे अपने नवजात का अकीका करता है। लेकिन नबी ही थे जिन्होंने हसन और हुसैन का अकीका किया था और खर्च सैयदना अली पर था। या तो यह उनके पिता की इजाजत से था कि उन्होंने उनके पिता की ओर से उनका अकीका किया और वह सबके पिता हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खर्च की जिम्मेदारी ली थी। अनाबिला कहते हैं कि पिता के अलावा कोई और अकीका नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मौत या इनकार के कारण यह असंभव हो। उन्होंने कहा, नबी ने हुसैन का अकीका किया क्योंकि वे मोमिनों पर उनसे बढ़कर हकदार हैं। नबी मोमिनों पर उनकी जानों और मालों से भी ज्यादा हकदार हैं। तो उनके अनुसार अकीका केवल पिता की तरफ से होता है, जैसा कि मालिकियों ने कहा कि अकीका करने की जिम्मेदारी पिता की है। अनाबिला कहते हैं, अकीका सिर्फ पिता से सही है, कोई और करे तो करना जायज है, पर वह अकीका नहीं कहलाएगा। पिता के अलावा की गई कुर्बानी अकीका नहीं, बल्कि नबी ने हसन और हुसैन का अकीका इसलिए किया क्योंकि वह मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा हकदार हैं। उन्होंने कहा, पिता के लिए अकीका मुस्तहब है, गरीब हो तब भी वह कर्ज ले ले जब तक वह भुगतान करने में सक्षम है। वो कहता है, अनस रजी की रिवायत, हर एक के बालों का वजन दिरहम या कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी। उन्होंने हुसैन के कान में अजान दी जब फातिमा ने उन्हें जन्म दिया नमाज के लिए, और उनके कान में सूरह अल इखलास पढ़ी। इसे अल हाकिम ने अल मुस्तदरक में और अत तबरानी ने अल कबीर में रिवायत किया है।
اور حسن رضی اللہ عنہ کا جنم ہجرہ کے تیسرے سال رمضان کے مدھیہ میں ہوا تھا۔ پھر ان کے بعد حسین کا جنم ہجرہ کے چوتھے سال شعبان میں ہوا، تو ان کے بیچ 11 مہینے کا انتر تھا۔ حسن کا جنم ہجرہ کے تیسرے سال رمضان میں ہوا تھا۔ اور سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ سے سفر میں شادی کی تھی۔ اس دوسرے سال میں پھر ہجرہ کا تیسرا سال شروع ہوا، تو انہوں نے رمضان میں انہیں جنم دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے سال ہجرت کے شعبان میں انہوں نے حسین کو جنم دیا، تو ان کی عمر میں 11 مہینے کا انتر تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر انہوں نے زینب کو جنم دیا، اور آخری جسے انہوں نے جنم دیا وہ ام کلثوم تھی، جن سے سیدنا عمر نے پیغمبر کے گھر سے رشتہ داری کی اچھا میں شادی کی تھی، اور وہ اسے پکارتے تھے، اے دو سمانت ہستیوں کی بیٹی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ان پر ہو۔ اور عتیرہ کے ذکر میں جس کا پہلے الیک کیا گیا، یہ جاہلیت میں اپنی پہلی پیداوار کو اپنے دیوتاؤں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اسی طرح وہ رجب میں بھی ذبح کرتے تھے، جس کے ذریعے جاہلیت کے لوگ قربت حاصل کرتے تھے۔ الفر اور العتیرہ کا حکم رد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے ذبح نہیں، لیکن رجب اور انیہ مہینوں میں ذبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، کسی مورتی کے لیے نہیں، اور نہ ہی اللہ جل جلالہ و تعالیٰ فی اولا کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ تو وہ اونٹنی یا بھیڑ کے پہلے بچے کو اپنے دیوتاؤں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اسے منع کیا گیا، اور شریعت میں قربانی اور عقیقہ ٹھہرائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہاں، حنابلہ اور کچھ مالکی کہتے ہیں کہ حدیث کا ادیش یہ نکارنا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں کی جانے والی عتیرہ کے سمبند میں ایک سنت ہے، لیکن اسے کرنے میں کوئی مناہی یا ناپسندگی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی رجب میں کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا اپنے مویشیوں کی پیداوار میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ سویکاری اور پرشنسنیہ ہے، اور وہ اس کی نیت کے انوسار ہے، اور اسے اس پر اجر ملے گا جو وہ اس میں سے صدقہ کرتا ہے یا ہدیہ کرتا ہے۔ الحارث ابن عمرو سے روایت ہے کہ وہ بدائی حج میں نبی سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا، اے رسول اللہ، میں نے لوگوں میں عتیرہ اور فر کی ریت پائی، جو چاہے عتیرہ کرے، جو چاہے نہ فر ویسا۔ یہ نسائی کی روایت میں ایک کمزور سند کے ساتھ آیا ہے۔ لقیط ابن عامر سے روایت ہے، انہوں نے نبی سے پوچھا، ہم رجب میں قربانی کرتے تھے اور جو آتا اسے کھلاتے۔ انہوں نے کہا، حرج نہیں، جب تک اللہ کے لیے ذبح کرو، کھاؤ کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ سمسیا تو اسے دیوتاؤں اور مورتیوں کے لیے ذبح کرنے میں ہے، یہی پوتر شریعت میں منع ہے۔ اور امام نووی نے کہا کہ صحیح بات، جیسا کہ شافعی نے کہا ہے، یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے، یعنی عتیرہ اور فرع، بلکہ وہ اس طریقے سے مستحب ہیں جیسا کہ پوتر شریعت میں آیا ہے، اور یہ ان گھٹناؤں میں سے ایک تھا جو ہماری سیدہ ام کلثوم کی شادی میں
हमारे सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब के साथ हुई थी। अपनी प्रजा का निरीक्षण करते हुए वह एक रात बाहर निकले और शहर के बाहरी इलाके में एक तंबू देखा जो पिछली रात वहां नहीं था। तो वह यह देखने के लिए करीब गया कि यह क्या है, और उसने कराहने की आवाज सुनी। चिंतित होकर उसने तंबू में मौजूद व्यक्ति को पुकारा और एक आदमी उसके पास बाहर आया। उसने पूछा, तुम दोनों कहाँ से हो? यह तंबू कल यहाँ नहीं था। उसने कहा, हाँ, हम रेगिस्तान से हैं। हमारी हालत तंग हो गई और हम शहर के करीब आ गए ताकि उमर की मदद हम तक पहुंच सके। लेकिन तुम्हारे तंबू से करार सुनता हूँ, अपने रास्ते चलो। आदमी, उसे पता न था सैयदना उमर थे। उसने कहा, अपने रास्ते चलो, तुम्हें दखल का हक नहीं। उसने जवाब दिया, नहीं, जब तक तुम यह कराहट क्या है पता नहीं देते। उसने कहा, हमें बस छोड़ दो। उसने कहा, कभी नहीं। पत्नी प्रसव में दाई नहीं। रुको, खर्च मदद दूंगा। उमर, नेक बेटी हाजिर। क्या तुम भलाई लोगे जो अल्लाह ने भेजी? वह बोली, क्या? दोहा के रेगिस्तान से गरीब लोग आए हैं। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ है जिसे बच्चा होने वाला है। मैं करूंगी जो चाहिए, तैयार करो। प्रसव सामान लेकर बाहर। खेमे के पास पहुंचा। खेमे के मालिक, बाहर आओ, यह औरत तुम्हारे घर वालों की मदद करेगी। वह बाहर गया और कहा, यहाँ हमारे लिए एक चूल्हा बनाओ, हम तुम्हारे लिए रात का खाना पकाएंगे। तो उसने पत्थर लगाए और हमारे सरदार उमर ने आग जलाई और वह खाना बना रहा था, और हमारी बीबी कुलसुम खेमे में दाखिल हुई। उमर पकाते थे। जैसे ही यह पक गया, हमारी बीबी कुलसुम दरवाजे पर खड़ी होकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, उस आदमी को बता दो कि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है और वह ठीक है। उसने ए अमीरुल मोमिनीन सुना तो वह पीछे हट गया। हमारे सरदार उमर हंसे और कहा, करीब आओ, मैं उमर इब्न अल खत्ताब हूँ। कुलसुम, नातिन, अमीर पका। कहा कि वह नबूवत के घर में पली बड़ी है। उसके पिता, उसके दादा और उसकी माँ ने उसे इसी तरह पाला है। जाओ, मदद आएगी। और कुलसुम को लिया और घर लौट आए। तो यह अमीरुल मोमिनीन का जीवन है और नबूवत के घराने वालों का जीवन है, और कैसे उन्होंने अल्लाह के कलाम को समझा, अल्लाह के हक को अदा किया और ज़मीन पर खिलाफत के काम को अंजाम दिया, यहाँ तक कि वे अल्लाह से जा मिले। बरज़ख, क़यामत और दारुल करामत में हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की उम्मीद में। अजब ईमान, रुख प्रकट सच महिमा में, और महान अखलाक वाले और खालिक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कितनी अच्छी तरबियत की, और हमें उनकी मोहब्बत से नवाज और हमें उनका अच्छी तरह से पालन करने की तौफीक दे। कहते हैं कि कुछ संस्थाएं लोगों के लिए कुर्बानी के जानवर ज़बह करती हैं। कुर्बानी के जानवर का सिर कसाई उसे साफ करने से मना कर देते हैं और वह बर्बाद हो जाता है।
यह माल की बर्बादी है और कुर्बानी के मालिक को उनसे इसे साफ करने के लिए कहना चाहिए। ज़बह करो। वे केवल उनकी ओर से प्रतिनिधि बनकर ज़बह करते हैं यदि अधिकृत किए हों, वरना सुन्नत यह है कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी देखे। अगर वह ज़बह कर सकता है तो सुन्नत यह है कि वह खुद ज़बह करे। वह खुद कुर्बानी करता है, इसे संस्थाओं को नहीं देता। लेकिन अगर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाना हो या किसी और नेक मकसद के लिए हो तो वकालत से वह किसी को अपनी तरफ से ज़बह कराए। उसका प्रतिनिधि खुद ज़बह करे या मौजूद रहे। अगर उसे किसी और को सौंपने की इजाज़त हो तो वकील खुद ज़बह करता है, या अगर माल का मालिक उसे अपनी तरफ से कुर्बानी करने या जिसे चाहे उसे सौंपने की इजाज़त दे। अल्लाह हमें दीन की रस्मों की ताज़ीम दे और भीतर बाहर दुरुस्त करे, सराइर पाक करे, फसारत रोशन करे। आमीन। हबीब की उम्मत से हर मुसीबत दूर कर दे। आमीन। उनके हालात बेहतरीन कर, हमें उनके भले, नफ़ा व बरकत में ज़ाहिर बातिन साबित रख। फातिहा के राज से नबी मोहम्मद की बारगाह में दरूद। और हमारे ऊपर से जुल्म दूर कर दे और हम खुशियों में जिए और हमारे लिए बुलंदियां हों। जब हमारा तरीका यह बन जाए कि धर्म तो थोड़े से लोगों में है और हम अपने सृजनकर्ता के कथन को भूल जाए जो ऐसी ऐसी चीजों की ताजीम के बारे में है